بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیاں قرآن اور حدیث کی روشنی کے حوالے سے ہے کہ قیامت کسے کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہے۔ دوستو، اسلامک واقعات آپ کو اپنے اسلام کی پہچان سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پورا واچ دیکھیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کی سزا و جزا کے لیے ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے۔ اس دن وہ سب کا حساب و کتاب لے گا، جس میں نیکوں کو جنت اور بروں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ اسی کو عرف شرح میں قیامت کہتے ہیں۔ ان میں غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحوالے قیامت کی نشانیاں۔ بعض جاہل نام نہاد مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ معاذ اللہ، بلکہ کچھ تو آپ کے متعلقاً علم غیب کا ہی انکار کرتے پھرتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جنت میں جانے والوں اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد تک کو بتا دیا۔ پہلے حدیث پاک پڑھیے، پھر بات آگے بڑھائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان حاضر ہوئے تو آپ کے ہاتھوں میں دو کتاب تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بغیر بتائے ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے داہنے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس میں جنت میں جانے والوں کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ درج ہیں، اور آخر میں سب کا ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے کہ اب اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر بائیں ہاتھ کی کتاب کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں جہنم میں جانے والوں کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ درج ہیں، اور آخر میں سب کا ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے کہ اب اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ تو بس ایک حدیث پاک ہے، ورنہ کتابوں میں تو ایسی ہزاروں حدیثیں مل جائے گی۔ اب ذرا سوچئے کہ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے بعد تک کا حال جانتے ہوں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، کیا وہ قیامت کا علم نہیں جانتے ہوں گے؟ یقیناً اور ضرور جانتے ہیں، اور انہی کے بتانے سے آج مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کی 10ویں جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان آئے گی۔ اور رہی بات وقت متعین کی، تو وہ بھی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس راز کو پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے۔ اور جو روح جس جسم میں تھی اسی کے ساتھ حشر ہوگا، یہ نہیں کہ نیا جسم پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے، اگرچہ اس کا جسم جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے یا مختلف جانوروں کی غذا بن جائے۔ جسم کی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک اجزاء ہوتے ہیں جن کو عصب الزند کہتے ہیں، جو نہ تو دوربین سے نظر آتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ زمین اسے گلا سکتی ہے، اور مولا تعالی اس پر قادر ہے کہ اس کے اسی تخم سے سارے اجزاء کو ملا کر پھر کھڑا کر دے، اور کیوں نہ ہو
कि जो खालिके कायनात पहली बार बगैर शक्लो सूरत के एक इंसान को पैदा कर सकता है, उसका उसी इंसान को उसी हैबत पर दोबारा वजूद में लाना कौन सा मुश्किल काम है। बुखारी व मुस्लिम शरीफ में है कि एक शख्स बहुत ही गुनाहगार था। जब वो मरने लगा तो उसने अपनी औलाद को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मुझे दफन ना करना बल्कि जला देना, और मेरी राख के 2 हिस्से करना, एक हिस्से को हवाओं में उड़ा देना और दूसरे हिस्से को पानी में बहा देना। उसकी औलाद ने ऐसा ही किया। मौला ताला ने हवा को हुक्म दिया कि इसके सारे जर्रात को मिला दो, और पानी को हुक्म दिया कि इसके सारे जर्रात को मिला दो। तो दोनों ने ऐसा ही किया। जब उसके जिस्म के 2 हिस्से बन गए तो मौला ने दोनों को मिलाकर उसमें रूह लौटाई और फरमाया कि तेरी ऐसी वसीयत करने की क्या वजह थी, हालांकि वो सब जानता है। तो बंदा अर्ज करता है कि मौला मैं बहुत ही गुनहगार था, मुझे यही खौफ था कि अगर मुझे अजाब दिया गया तो दुनिया का सबसे ज्यादा अजाब मुझ पर होगा, तो तेरे इसी खौफ से मैंने ऐसा फैसला किया। तो मौला फरमाता है कि तेरे इसी खौफ ने आज तुझे बचा लिया और वो बख्शा गया, क्योंकि खुदा से डरना ही तो सारी इबादत की असल है। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समुंदर के किनारे एक मरे हुए शख्स को देखा जिसकी लाश को मछलियां खा रही थीं। फिर कुछ देर बाद उसी लाश पर कुछ परिंदे भी आ गए और उन्होंने भी उस लाश को खाना शुरू कर दिया। फिर कुछ जंगली जानवर आए और उन्होंने भी कुछ खाया। जब आपने ये मंजर देखा तो आपके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि मैं अपनी आंख से देखना चाहता हूं कि मौला ताला किस तरह मुर्दों को जिंदा फरमाएगा, और आपने बारगाहे खुदाबंदी में अपनी आरजू पेश कर दी। ख्याल रहे कि आपको खुदा की कुदरत पर शक नहीं था, क्योंकि आपने काफिरों से खुदा की यही सिफत बयान की थी कि मेरा रब वो है जो मारता है और जिलाता है। अगर आपको इस बात में शक होता तो हरगिज आप ऐसा नहीं कहते, बल्कि सिर्फ अपनी आंखों से रब की कुदरत का मुशाहिदा करना चाहते थे। और ये भी ख्याल रहे कि अगर आपको इस बात में शक होता तो यकीनन आप पर खुदा का इताब होता, मगर हरगिज ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मौला फरमाता है, ऐ खलील तुम 4-4 परिंदों को मिलाकर अलग अलग पहाड़ों पर रख दो, फिर उनको बुला तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोरक, बूतर, मुर्ग, कौवा इन चारों को कीमा बनाकर सबको एक साथ मिला दिया। फिर उन सब में से 4-4 हिस्से करके 4-4 अलग अलग पहाड़ियों पर रख दिए और सबका सर अपने पास रख लिया। अब जिस परिंदे को आप आवाज देते तो उसके पूरे अज्जा चारों पहाड़ियों में से उड़ते हुए आते, आपकी आंखों के सामने सब इकट्ठा होता। आप उस पर जैसे ही सर का टुकड़ा लगाते वो जिंदा होकर उड़ जाता। दीगर अंबियाए किराम जब अपनी उम्मतों को कयामत से डराते और कयामत की निशानियां बताते तो फरमाते कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि इस दुनिया में नबी ए आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़हूर ना हो जाए। और कुछ रिवायतों में आपका इस दुनिया ए ज़ाहिरी से विसाल फरमाना भी आया है। बहरहाल इतना तो साबित है कि कयामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी यही थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती, और आपकी आमद हुए 1492 साल, और फिर आपका ज़ाहिरी विसाल हुए भी 1429 साल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम कयामत से बस गिनती के चंद साल ही दूर हैं, मगर हाय रे मुसलमान मौत के मुहाने पर खड़ा है।
और आखिरत को छोड़कर दुनिया सजाने की फिक्र में लगा बैठा है। मौला ताला से दुआ है कि मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए कि जल्द से जल्द अपनी आखिरत के बारे में सोचे, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि गफलत में ही मौत आ जाए और जब अपने गुनाहों पर पशेमान हो तो कुछ कर भी ना सके। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले उनकी निशानियां अपने बंदों को बता रखी है। इसको अलामाते कयामत कहते हैं और इसकी भी दो किस्में हैं। अलामाते सुगरा यानी छोटी निशानियां, इसका ज़हूर कयामत आने से बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा, बल्कि शुरू हो चुका है। अलामाते कुबरा यानी बड़ी निशानियां, इसका ज़हूर कुर्बे कयामत में होगा और इसकी शुरुआत मुसलमानों की तमाम हुकूमतों के खात्मे से होगी। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से हैं, जब तुम देखो कि नमाजों को जाया किया जाए, अमानत को रायगा कर दिया जाए, कबीरा गुनाहों को हलाल ठहराया जाए, सूद खोरी की जाए, रिश्वत ली जाए, मकान ऊंचे और पुख्ता बनाए जाएं, नाजायज ख्वाहिशों की तकमील की जाए, दीन को दुनिया के बदले बेचा जाए, कुरान को गाने की तरह पढ़ा जाए, दरिंदों की खालों को बतौर ज़ैन इस्तेमाल किया जाए, मस्जिदों को रास्ता बनाया जाए, मर्द रेशम का लिबास पहने, जुल्म हद से बढ़ जाए, जिना की कसरत हो जाए, तलाक को खेल बनाया जाए, अमीन को खाइन ठहराया जाए, खाइन को अमानतदार समझा जाए, बारिश कम हो जाए, औलाद दिल की घुटन बन जाए, बड़े ओहदों पर वो बैठे जो उसके लायक ना हो, उल्मा पैसों के लिए अमीरों की चाकरी करें, कारियों की कसरत हो, फुकहा की किल्लत हो जाए, कुरान पर सोने चांदी के गिलाफ चढ़ाए जाएं, मस्जिदें सजाई जाएं, दिल फासिद हो जाएं, लोग गाने वालियां रखें, ढोल बाजे हलाल किए जाएं, शराब पी जाए, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा जाए, महीने घट जाएं, वादा खिलाफी आम हो जाए, औरत और मर्द शरीके तिजारत हों, औरतें घोड़ों पर बैठे, औरत मर्द से और मर्द औरत से मुशाबहत रखे, गैरुल्लाह की कसम खाई जाए, आदमी बगैर गवाह हुए गवाही दे, ज़कात बोझ बन जाए, अमानत माले गनीमत हो जाए, मर्द अपनी बीवी की इताअत करे, माँ बाप की नाफरमानी करे, माँ बाप को अपने से दूर रखे, ओहदों को जायदाद की तरह बांटा जाए, गुजरे हुए लोगों को गालियां दी जाएं, आदमी की इज्जत उसके डर से की जाए, सिपाहियों की कसरत हो, जाहिल मिंबर पर बैठे, मर्द ताज पहने, रास्तों की किल्लत हो जाए, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ सोहबत करे, उल्मा मन चाहा फतवा दें, दुनिया के लिए इल्मे दीन हासिल किया जाए, माल पर शरीरों का कब्जा हो जाए, कुरान को तिजारत बनाया जाए, रिश्तों को काटा जाए, जुआ आम हो जाए, मोहताजों को ज़कात ना दी जाए, बेगुनाहों का कत्ल आम हो जाए, नापतौल में कमी की जाए, तो इंतजार करो उस चिंगाड़ का जो तुम्हारे दिल को दहला दे। कंजुल उम्माल जिल्द 14 सफ़ा 573-574। अलामते क़यामत में हर अलामत नाजायज नहीं है, जैसे कि मकान ऊंचे और पुख्ता बनाए जाएं, कुरान पर सोने चांदी के गिलाफ चढ़ाए जाएं, मस्जिदें सजाई जाएं, ये वो अलामत है जो क़यामत की निशानी तो है मगर नाजायज नहीं। इसी तरह एक मैसेज अक्सर घूमता रहता है कि क़यामत की निशानी है
कि लोग अपने हाथों से कुरान को मिटाएंगे और ऐसे मैसेज ना भेजने की अपील की जाती है। पहला तो ये कि क़यामत की निशानी ये बताई गई है कि कुरान के हुरूफ उड़ जाएंगे, ना कि लोग अपने हाथ से मिटाएंगे। और दूसरा ये कि अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा फरमाया गया, तब भी वो नाजायज फेल नहीं होगा, क्योंकि ये मिटाना तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से चल रहा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता तो सहाबा उसे पत्तों पर, हड्डियों पर, चमड़े के गिलाफों पर लिख लिया करते और बाद में किसी और जगह महफूज करके उसे मिटा देते। और ये दस्तूर तो आज भी दुनिया के तमाम इस्लामी मदारिस में बाआसानी देखा जा सकता है कि उस्ताज बच्चों को पढ़ाते हुए अक्सर ब्लैक बोर्ड पर कुरान की आयतें लिखते हैं और बाद में उसे मिटा देते हैं। तो क्या वो सब गुनाह करते हैं? नहीं, और बिल्कुल नहीं। एक मुसलमान को वो मिलता है जिसकी उसने नियत की हो, तो कोई मुसलमान हरगिज कुरान को इस नियत से नहीं मिटाता कि ये अल्लाह का कलाम है और मैं इसे मिटा दूं तो ये मिट जाएगा माज़ अल्लाह, बल्कि सिर्फ इसलिए डिलीट करता है कि उसकी मेमोरी फुल हो जाती है। और इस मिटाने पर कोई गुनाह नहीं, पार्ट अलग कर जाना है। Subscribe channel for more videos. Thanks for ऐसे ही वाक्य हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही इस्लामी वाक़यात वाली वीडियो आते रहते हैं। अल्लाह हाफिज।